Welcome to all of you. Welcome in ninth class physics and the chapter motion. Okay. So in our previous lecture we discussed on speed time graph. Okay. Now in this video our motto is to find the distance from speed time graph. How to find the distance from speed time graph? Okay, suppose this is the graph, okay, and the time on x-axis and speed in meter per second on y-axis. Okay, so time is 1 2 3 4 second and speed 1 2 3 4 5 6 7 8 meter per second. Okay, and at 4 second the speed is 8 meter per second, means the speed is linearly increasing. Okay, now how to find the distance from this graph? Okay, so for find the distance traveled by the body in the first 4 second, में इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस फाइंड करी, देन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द ग्राफ लाइन एंड एक्सिस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है, ओके, इस ग्राफ में कितना एरिया इनक्लोज किया है. ओके, सो आई मेक a shaded portion, shaded area, okay, and AOM is a triangle. Okay, in this triangle the area enclosed, whatever the area of this graph, we can calculate the distance travel. Okay, let's see here. Distance equal to what? Area of triangle OAM. Triangle OAM. Okay. So what is the area of this triangle? You know that the area of triangle is what? This is the right angle triangle, and the area of right angle triangle is 1/2 into base into altitude or height. So this is the base. This is the base and this is the altitude or height. So 1/2. What is base? Base means OM. OM is the base, and what is the length of OM? 4 second. So I write here 4 second into altitude. Altitude means this is the height. Okay, so what is AM? AM is what? 8 meter per second. So I write here 8 meter per second. Okay, so if I cancel 2 to 4, then it's cancelled 2 times, and if you multiply 8 into 2, that is a 16 meter. Okay, and second, this second is second cancel. Okay, so from this graph we can conclude that this distance traveled by the body is 16 meter per second. Okay, and at time interval t equal to 4 second, the speed is 8 meter per second. Okay, so please make. Okay, next, velocity time graph. Okay, I take two graph. This is the first and this is the second. Okay, from this graph what we have got the information. इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? Okay, so velocity time graph means the time on the x-axis and velocity on the y-axis. Okay, so time in 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, and velocity in meter per second and is 1 meter per second, 2 meter, 3 meter per second, 4 meter per second, and 5 meter per second. Okay, now for finding the velocity at time t equal to 1, if I write here t equal to 1 second, t equal to 1 second पर वेलोसिटी कितनी है ये मुझे फाइंड करना है. तो मैं एक परपेंडिकुलर इधर डालूंगा एक्स एक्सिस पर. ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ऐसा डाला एक्स एक्सिस पर. ठीक है, ओके, एक परपेंडिकुलर इस तरीके से. अब आप देखिए, एक परपेंडिकुलर इधर डाला वाई एक्सिस पर,
ओके, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला जो ए पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और एक परपेंडिकुलर इधर डाला वाई एक्सिस पर. ओके, सो एट दिस पॉइंट A the velocity is what, 5 meter per second for 1 second. Similarly at time t equal to 2 second पर एक और परपेंडिकुलर डाला इधर से यहाँ पर. ओके, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इधर डाला, इधर इस तरीके से. परपेंडिकुलर मीन्स जस्ट ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री. ये भी कितना है, 90 डिग्री. इसी खड़ी लाइन यहाँ पर डाली, एक लाइन इधर से. तो यहाँ पर आप देखिए एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड द वेलोसिटी इज व्हाट, इज आल्सो 5 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली फॉर 3 सेकेंड आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन ऑन एक्स एक्सिस. ये परपेंडिकुलर इधर यहाँ पे डाला और यहाँ से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर डाला. ठीक है, तो क्या हो गया, ये मैं यहाँ पे पॉइंट था ए बी सी एंड दिस इज द डी पॉइंट. ओके, सो एट टाइम t equal to 3 second the velocity is what, also 5 meter per second. And for time interval t equal to 4 second, 4 second पर आप देखिए एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ दिस ग्राफ इज कांस्टेंट. व्हाट वी विल गेट द इंफॉर्मेशन, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ओके, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट. ओके, फ्रॉम दिस ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, इसमें आप देखिए व्हाट वी विल गेट द इंफॉर्मेशन. ऑन एक्स एक्सिस द टाइम इंटरवल इज 0 1 2 3 4 लाइक दिस, एंड ऑन वाई एक्सिस 2 4 6 8. ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है. ठीक है, अब आप देखिए एक परपेंडिकुलर यहां से डाला, सपोज यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, एक परपेंडिकुलर इधर डाला. ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड. एट टाइम कितना है, यहाँ पर 1 सेकेंड. ओके, फॉर 2 सेकेंड if I draw perpendicular, okay, perpendicular यहाँ पे डाला, जिस पॉइंट पे यहाँ कट करेगा, कि यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने इसे ऊपर की तरफ खींचा और ये इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है. तो यहाँ पर यहाँ से y एक्सिस पे क्या किया, ये परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ पर देखिए ये 4 पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है. ठीक है, सो एट टाइम t equal to 2 सेकेंड द वेलोसिटी इज व्हाट, 4 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड से एक परपेंडिकुलर इधर डाला. ठीक है, तो ये ओ ए लाइन पर यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर डाला, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या होगी, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 6 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली फॉर टाइम 4 सेकेंड t इक्वल टू 4 सेकेंड एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डाला 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए. इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला. ठीक है, ये 8 यहाँ पर कट कर रहा है. ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो फर्स्ट एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड द वेलोसिटी इज 2 सेकेंड पर 4, 3 पर 6, 4 पर 8. वेलोसिटी लीनियरली क्या कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, मींस चेंज इन द वेलोसिटी. वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. In our first graph the velocity is constant, but in this graph velocity is not constant. Velocity linearly increases with the time. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. When the motion is, when the velocity is non-constant, then the acceleration is what? The acceleration is slope of the line OA. जो OA लाइन होगी, इसी लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा. स्लोप किस तरीके से फाइंड करते हैं, अब देखिए AM अपॉन OM. ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा, AM अपॉन OM. और AM कितना है, AM देखिए AM ये कितना है, 0 से 8 मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड. सो आई राइट हियर 8 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज OM, OM इज व्हाट, ये OM है और ये कितना है, 4 सेकेंड. सो
8 is divided by 4. If we cut this, then 2 meter per second square. Okay, so this is the acceleration of this graph. Okay, this is the acceleration of this graph. Okay, understood? Please make. Okay, this is the next graph like this. The time on the x-axis is 1, 2, 3, 4, 5 seconds, and time on the y-axis, the velocity on the y-axis is like this. This is the velocity, meter per second. Okay, so velocity 3 meter per second, 6 meter per second, 9 meter per second, and 12 meter per second. Okay, now at time t equal to 0, the velocity is 12, and t equal to 1, the velocity is reduced, and t equal to 2 seconds, the velocity is also reduced, and t equal to 3 seconds, the velocity is again 0. And at point A and time t equal to 0, the velocity is maximum, and at time 3, the velocity is 0. Means initially the object has very high velocity, and after some time the object stop at time 3 equal to टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड. 3 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टॉप हो गया. आप देखिए वेलोसिटी पहले क्या थी, बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे क्या हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई. मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है. ओके, सो द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम एंड द लाइन इज स्ट्रेट लाइन. द डिक्रीज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, टाइम के साथ में धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और 3 सेकेंड पर बिल्कुल क्या हो गई है, जीरो हो गई है. ठीक है, लेकिन लाइन जो है वो कैसी स्ट्रेट लाइन है, सो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है. ओके, दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मीन्स फर्स्ट वेलोसिटी इज वेरी हाई, एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक द ऑब्जेक्ट और द बॉडी जस्ट स्टॉप एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड. 3 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, स्टॉप हो चुका है. सो दिस इज द रिटार्डेशन, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी. इस ए बी लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, या हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा. तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ए ओ अपॉन ओ बी. ए ओ अपॉन ओ बी. माइनस यहाँ पर क्यों यूज किया, क्योंकि ग्राफ जो है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसका स्लोप जो है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है, इसलिए ए ओ अपॉन ओ बी. सो ए ओ इज व्हाट, ए ओ 12 मीटर पर सेकेंड, एंड ओ बी कितना है, 3 सेकेंड. सो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. ओके, so from this graph we can conclude that if the velocity is decreases with time and the line is straight line, then the velocity is uniform, and this is the case of retardation. And how to find the retardation, we can calculate by using the slope of the line. Okay, so this is the 4 meter per second. This is the value of negative acceleration or retardation. Okay, please make this